Sometimes our sentence contains two objects. What to do in this case? Don't worry, this video will make you understand this concept very, very clearly. Suppose we have a sentence with two objects. Ali gave me a pen. अब आप इसमें परेशान होंगे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, me and a pen. So कौन से ऑब्जेक्ट को लेके हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं? So इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बन सकता है. A pen was given to me by Ali. First method के साथ हमारी मेथोडोलॉजी सेम है. We must identify three things. In this case, four things. कौन सी चीजें? Subject, object number one, object number two, and our verb. Subject is the doer of the action. Object number one is the person. Object number two is the thing. And then we have to identify the verb, the action. अब in this case, in this sentence, let's identify these four things. So our first thing is our first subject is Ali. And then our first object is that person, me. And then the thing, a pen, is our second object. And verb is give. So the first object, the person, is always called indirect object because it indirectly receives the action, and then the thing always called direct object. So this is direct and indirect object, और आपने ये बात भी याद रखनी है. So अब इस सेंटेंस को किस तरह से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं उसकी मेथोडोलॉजी को डिस्कस करते हैं. So our first method is with direct object. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सेंटेंस में था a pen, हम उसकी हेल्प से भी इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं. The second one is its helping verb. Third step is third form of verb like always in passive voice, and the fourth one is to plus indirect object, and the last step is by. So इस सेंटेंस में देखें, Ali is the subject and gave is the verb and a direct object is a pen. So first step में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पे लेके आएंगे. A pen helping verb पास्ट है, gave से हमें पता चला दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट में वी हैव हेल्पिंग वर्ब्स was और were. अगर पेन्स होता तो हम were लगाते. A pen है तो it must be followed by was. A pen was third form given, and then to plus indirect object, that is me, to me by Ali. A pen was given to me by Ali. This is passive voice of this sentence with the help of direct object, जो कि हमारा method number 1 है. Then our method number 2 is with the help of indirect object. The second step is helping verb. Third step is always the same, third form of verb, and the fourth step is with direct object, and the last one is by. अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए. The only difference is कि फोर्थ स्टेप में यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज आ रहा है, और यहाँ पे हम टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं. बाकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी जब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे वो सारे का सारा सेम रहेगा. इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज मी. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पे लेके आए. तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, जैसे अस की वे, जैसे मी की आई, जैसे यू की यू ही होती है. तो इस तरह से देम की दे होती है. सो दिस इज द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस. तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट केस में रहना चाहिए और ऑब्जेक्ट को हमारे पास ऑब्जेक्ट केस में ही रहना चाहिए. सो आई है तो आई के साथ was आएगा या were? Obviously was आएगा. Then the third form of verb, हमारा third step, I was given, and then our direct object, that is a pen, and then by or Ali. I was given a pen by Ali and a pen was given to me by Ali. ये दोनों सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हमारे पास करेक्ट है. अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद आवर फर्स्ट method. So our first multiple choice question is the teacher gave the students a test, और इसका first option देखिए, a test was given, and beta is a test is given, and Charlie is a test was given to the students. इसमें to the students है और first वाले में था for the students. ये हमारे पास डिफरेंस है. डेल्टा में देखें a test is given to the students by the teacher. So ये four options है हमारे पास. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, that is a test, and then इसका verb देखेंगे, that is gave, and then the subject. अब इसमें देखें gave is पास्ट फॉर्म, और पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास was या were है पास्ट इंडेफिनिट के. सो इस वाले जो सेंटेंसेस है वो राइट अवे एक्सक्लूड हो जाएंगे. बीटा भी नहीं आ सकता, और हमारे पास जो डेल्टा है दैट इज आल्सो इनकरेक्ट. सो हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, अल्फा एंड चार्ली ऑप्शन. अब इसमें देखें अ टेस्ट वाज टेकन फॉर द स्टूडेंट्स. हम देखते हैं कि टू लगता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, फॉर नहीं लगाते. सो हमारा जो अल्फा है दैट इज आल्सो एक्सक्लूडेड, और आवर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन. अ टेस्ट वाज गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर. सो चार्ली इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो सेकंड है. सेकंड वन इज द कंपनी ऑफर्ड द एम्प्लॉयज अ बोनस. अब इसके ऑप्शन है हमारे पास, द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड टू अ बोनस, एंड द सेकंड वन इज द अ बोनस वाज ऑफर्ड टू द कंपनी, एंड देन द थर्ड वन इज अ बोनस वाज ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज बाय द कंपनी, एंड डेल्टा इज द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड टू द कंपनी अ बोनस. अब इसमें देखें सबसे पहला स्टेप हम वही करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज अ बोनस, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्वियसली हमारा होगा द एम्प्लॉयज, और इसमें फिर वर्ब है हमारे पास ऑफर्ड, एंड आवर सब्जेक्ट इज द कंपनी. अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं. सबसे पहले अब बोनस स्टार्ट पे आना चाहिए, सो द एम्प्लॉयज वाला भी इनकरेक्ट हो गया, और डेल्टा भी द एम्प्लॉयज वाला भी इनकरेक्ट हो गया. अब बीटा और चार्ली हमारे पास बचा. अ बोनस वाज ऑफर्ड टू द कंपनी बाय द एम्प्लॉयज, और अ बोनस वाज ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज बाय द कंपनी. तो अगर हम देखें अ बोनस को, तो अ बोनस सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ गया, उसके बाद बोनस है तो इसके साथ ऑफर है, ऑफर पास बताता है, तो दोनों में वॉज ही आना चाहिए, तो दोनों यहां तक ठीक है. देन ऑफर्ड की थर्ड फॉर्म बी ऑफर्ड ही होगी. लेकिन यहां पे देखें अगर हम लगाते हैं टू द कंपनी, तो द कंपनी तो सब्जेक्ट है इसका, तो सब्जेक्ट यहां पे नहीं आना, बल्कि यहां पे क्या आना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज द एम्प्लॉयज. सो टू द कंपनी वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि टू के साथ सब्जेक्ट नहीं आता, टू के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव एन अदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड दैट इज माय फ्रेंड सेंट मी अ बर्थडे कार्ड. आवर फर्स्ट ऑप्शन इज आई वाज सेंट टू
I was sent to. बीटा में देखें I am sent a birthday card, then a birthday card was sent me, and then our delta option is a birthday card was sent to me. अब इसमें देखें सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखें a birthday card, that is our object, and then our verb is sent, and then our subject is my friend. So सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्ट पे लेके आएंगे. So I और I ये दोनों सेंटेंसेस हमारे पास इनकरेक्ट हो गए क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट पे लेके आना चाह रहे हैं. So a birthday card was sent me, और इसमें है टू मी. तो आपको पता है जो पर्सन है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा टू के साथ आता है. जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो उसने टू के साथ आना है, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उस मेथड में वो टू के बगैर आता है. सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा. चार्ली ऑप्शन हमारा इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें हमारे पास टू गिवन नहीं था. सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो सेकंड मेथड है विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो आवर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ टेस्ट. इसमें देखें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, और गेव इज आवर वर्ब एंड द टीचर इज आवर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से अब हम देखेंगे. अब इसमें देखना है कि इसमें हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज आएगा, इसमें हमारे पास टू नहीं आएगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू मेथड्स. आवर अल्फा इज द स्टूडेंट्स वर गिवन अ टेस्ट बाय द टीचर, बीटा इज द स्टूडेंट्स वर गिवन टू अ टेस्ट, एंड चार्ली इज द स्टूडेंट्स आर गिवन अ टेस्ट, एंड डेल्टा इज द स्टूडेंट्स वर गेव अ टेस्ट. सो गेव कभी भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी और फॉर्म नहीं आ सकती, तो ये राइट अवे एक्सक्लूड हो गया. चार्ली में देखें स्टूडेंट्स आर गिवन, तो अगर यहाँ पे गेव है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं होते बल्कि वाज वर होते हैं. सो दो ऑप्शंस हमारे पास राइट अवे एक्सक्लूड हो गए. सो वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, द स्टूडेंट्स वर गिवन अ टेस्ट एंड द स्टूडेंट्स वर गिवन टू अ टेस्ट. सो हमें पता है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट पे लेके आते हैं, यानी कि पर्सन को जब हम स्टार्ट पे लेके आते हैं तो फिर टू नहीं आता विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो टू वाला हमारा सेंटेंस बी इनकरेक्ट हो गया. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एमसीक्यूज, आवर सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द कंपनी ऑफर द एम्प्लॉयज अ बोनस. इसमें देखें द एम्प्लॉयज हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड टू अ बोनस, सो वर एंड टू. सेकंड वन इज अ बोनस वाज ऑफर्ड टू द कंपनी, एंड देन चार्ली वन इज अ बोनस वाज ऑफर्ड द कंपनी, वाज ऑफर्ड द कंपनी, एंड डेल्टा इज द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड अ बोनस बाय द कंपनी, वर एंड अ बोनस. सो इसमें देखें सबसे पहले वाला देखें द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड टू अ बोनस. सो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो फिर सेंटेंस में टू नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज आता है. सो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. अ बोनस वाज ऑफर्ड टू द कंपनी, सो टू द कंपनी नहीं टू द एम्प्लॉयज होना चाहिए फर्स्ट मेथड से, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. चार्ली में देखिए बोनस वाज ऑफर्ड द एम्प्लॉयज, सो यहाँ पे टू द एम्प्लॉयज होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो इस मेथड से विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, पास्ट का वाज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज विदाउट टू, एंड देन बाय द कंपनी. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं आवर सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज माय फ्रेंड सेंट मी अ बर्थडे कार्ड. अल्फा ऑप्शन is I was sent to a birthday card, then beta is I was sent a birthday card, Charlie is a birthday card was sent me, and our delta option is a birthday card was sent to my friend. So इसमें देखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है me, so सबसे पहले I स्टार्ट करना चाहिए. इसमें देखिए चार्ली भी और डेल्टा भी इनकरेक्ट हो गया. चार्ली में बर्थडे कार्ड was sent to भी होना चाहिए था, इनकरेक्ट हो गया. सेकंड मेथड से भी, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी. और डेल्टा में देखिए बर्थडे कार्ड was sent to my friend, so to me by my friend होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. So we are left with two options alpha and beta. I was sent to a birthday card. So अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो सेंटेंस में टू कभी भी नहीं आता, टू के बगैर सेंटेंस आना चाहिए. I was sent a birthday card by my friend, so our correct option is beta option. So I hope आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और now we can easily convert into passive voice sentences with two objects.